Anchal Gautam. Yes, ma'am. What is the classification of muscle? Ma'am, there are three types of muscles: skeletal muscle, smooth muscles, and skeletal muscles. Skeletal muscle, smooth muscle. वो तो दो एस हो गया, एक सी भी था ना? Card. नहीं. हाँ, कार्डियक Yes, ma'am. है ना, कार्डियक मसल. ओके, सो स्पेशली अबाउट द मसल्स, what then we had seen in detail. यहीं से ही इस स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं, है ना. First thing we had understood about muscles, that muscle is an excitable tissue made up of cells called myocytes or myofibers. It's composed of cells that are specialized to shorten and lengthen by contraction. Contraction results in movement, and this is the reason the muscle tissues are responsible for locomotion, for posture, speech, respiration, pumping of blood, movement of food, expulsion of waste, and storage of energy. Then this we had seen muscle fiber, a general picture to say see how the muscle fibers look like, है ना, एक एक स्ट्रैंड जैसा दिखाई दे रहा है ये. फिर हमने मसल बंडल के बारे में देखा था, राइट. First we will do this classification of muscles. You all have already mentioned skeletal muscle, cardiac muscle, and smooth muscle. Right. So first starting with skeletal muscle. Suppose there is a short note or an answer to be given on skeletal muscle. नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ मसल सारे लिखने हो अगर, है ना. तो skeletal muscle, let us see, present mainly in limbs. And why it is called skeletal muscle? It is also because of its relation with bony skeleton. ना हमेशा हड्डियों के पास में ये मसल दिखाई देता है, जिसके वजह से इसका नाम स्केलेटल मसल पड़ा है. Then also called striated. Skeletal muscles are also called striated muscles. Reason क्या है? When we see them under microscope, ये muscles में transverse striation दिखाई देते हैं, धारियां दिखाई देती है माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं, striations दिखाई देती हैं, जिसके वजह से इसे कहा जाता है कि transverse striations हैं. Also called voluntary muscles, as it can be made to contract on our will. ठीक है, so they are also called voluntary muscles. यानी मुझे अभी कुछ उठाना है, राइट, आप टेक्स्ट बुक्स उठा के पेजेस पलटने हैं, मेरे फिंगर्स और हैंड के कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई वांट टू डू, है ना. आई वांट टू वॉलंटियर टू डू इट, तो वॉलंटरी मसल्स भी इसे कहते हैं. नेक्स्ट थिंग वी हैड लर्नड that skeletal muscle is supplied by somatic motor nerve. ठीक है. फिर यहाँ पर एक स्लाइड देखी थी हमने, यहाँ पर जो आपको ये striations दिखाए हुए हैं, this is a peculiar feature that is seen, because of which it's called a striated muscle also. Next, hello students. Yes, ma'am. Okay, so next is cardiac muscle. Cardiac muscle में पहला है present exclusively in the heart. तो वहां पे याद रखना है कि बोन या स्केलेटन के पास में, इसीलिए उसका नाम स्केलेटल पड़ा.
यहाँ पे हार्ट के पास है, हार्ट ही के पास है और कहीं पे ये मसल आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल है और इसका नेचर कैसा है, इट इज नॉट वॉलंटरी, इट इज इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है, आई डोंट हैव टू टेल माई हार्ट ना, I don't have to think, oh my God, my heart should keep on beating. It keeps on doing it without me thinking and wanting it to do so, है ना, खुद से वो धड़कता रहता है, इसलिए उसे हम इनवॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी इन नेचर, देन इट रिसेम्बल्स striated muscle as fibers of cardiac muscle show transverse striation। ये एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है कार्डियक मसल और कौन से मसल में, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऐसे स्ट्राइएशंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, कार्डियक मसल हैज इनहेरेंट rhythmic contractility and rate of contractility can be modified by the autonomic nerve supplying it. This is again one property to be learned about cardiac muscle, that is when the muscles are contracting, it is not that sometimes it will contract and sometimes it will not contract, it will contract in a rhythm। rhythm का मतलब क्या होता है, एक गाने में रिदम होता है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न, तो रेगुलरली, हाँ वैसे ही कार्डियक मसल भी ऐसे ही थोड़ा देर धड़क लिया उसके बाद में वो आराम कर रहा है, ऐसा नहीं है, एक कंटिन्यूस पैटर्न में धड़कता रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से होती है, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से। एट द सेम टाइम ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की रेट है ये कम ये ज्यादा हो सकती है, ठीक है। मैंने अगर कह दिया कि डेट शीट आ गई है, अगले हफ्ते से आपकी एग्जाम है, अभी मैं ऐसे एग्जाम्पल भी बोल रही हूँ तो आधे लोगों की धड़कन बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली ऑटोनॉमिक नर्व्स उस तरीके से मीडिएटर्स सेंड करते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। कुछ लोग चेक करना भी शुरू करेंगे कहीं सच में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं मजाक में पढ़ाते पढ़ाते बोलती हूँ और हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज बी अलर्ट ऑल्सो। रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरी चीज है कि ऑटोनॉमिक नर्व्स जो कार्डियक मसल्स को सप्लाई करते हैं वे इस कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं सो रही हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मेरे दिल के धड़कन कम हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये कार्डियक मसल्स का भी स्लाइड दिखाया हुआ है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के देखने के लिए जो स्लाइड्स बनाते हैं ना, और इसमें भी आपको दिख रही है ना धारियां जैसी जो दिख रही है, इसीलिए इसे भी स्ट्राइएटेड कहा जाता है। थर्ड इज स्मूथ मसल। पूजा है क्लास में? पूजा इज देयर? Other students are there? Yes, ma'am. Pooja is there. Okay. Smooth muscle. Third thing is smooth muscle is present mainly in relation to viscera. Viscera का मतलब क्या है? मैम होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन ऑर्गन्स के आसपास का जो एरिया है ना, तो अब देखो, अब समझ में आ गया कि स्केलेटल मसल बोन्स के पास है, कार्डियक मसल दिल के पास है, हार्ट के पास, और ये जो है ऑर्गन्स के आसपास के इलाके में ये है, इसका नाम पड़ गया है स्मूथ मसल, ठीक है। खास करके कहाँ पे दिखता है? सारे हॉलो जो है विसरा उस एरिया में दिखाई देता है। मसल फाइबर्स डोंट शो ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन, so these muscle fibers they don't show transverse striation,
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल और नॉन स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, इनमें ऐसे स्ट्राइएशंस नहीं है जो हमने प्रीवियस देखा है, ऐसे लाइंस जो है दिख रही हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हम उसे नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स कह रहे हैं। ठीक है, और हमने लास्ट में फिर वो सीखा भी है ना किस वजह से वो स्ट्राइएशंस बनती हैं, वी विल सी दैट इन डिटेल। नाउ अगेन, an involuntary muscle as contraction is not under our control। ठीक है, तो ये भी involuntary muscle है। Got it? That means if I have eaten breakfast, I don't have to sit and tell my stomach muscles, all the smooth muscles keep on churning the food, push it further, ऐसा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डाइजेशन का प्रोसेस सब चलता है। ठीक है, पर हाँ ऑटोनॉमिक नर्व्स का उनके ऊपर असर भी पड़ सकता है। So that is smooth muscle. So see, there is no striations ना, line कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। This is also a slide of how a smooth muscle looks. तो अगर लैब में माइक्रोस्कोप्स में भी देखोगे तो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ही है। Next year you will have pathology. In that again you will see diagrams like this, slides बने हुए हैं। Well, in biology also you would have seen. Now we are starting with the first one, that is the skeletal muscle. तीन हमने पहले समझ लिया ब्रॉड इसमें, अब हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज skeletal muscle. Skeletal muscle forms 40% of total body weight. ठीक है, where is it present? Limbs and body wall. Specialized function of skeletal muscle. Let us see now what are the specialized functions. First is contraction. आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही वो पॉइंट बताया था कि contraction क्या है? It is the ability of the muscle to shorten and thicken. ठीक है, that is one property of the muscle. Second is elasticity. एक है कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल्स अपने लंबाई में छोटे हो सकते हैं और थोड़े से थिक हो सकते हैं, यानी उनका लेंथ कम हो जाएगा। दूसरी बात हमने देखा, इफ वेट इज देयर इट कैन स्ट्रेच आल्सो, मसल्स कैन स्ट्रेच बिकॉज ऑफ वेट। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ बोलिए। मैम कुछ नहीं बोलो, अभी कुछ ऐसा नहीं है, क्लासेस हो गए हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, कुछ बीच में बोलना है बोल सकते हो। मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर इज आल्सो अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, बिकॉज स्केलेटल मसल्स हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। जो हमारे जमीन पर हम जानते हैं ना, पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण जो बोलता है, उसको काउंटरैक्ट करने की, यानी उसके होने के बावजूद भी आपका शरीर सीधा खड़ा हो पा रहा है क्योंकि आपके स्केलेटल मसल में वो काबिलियत है। गॉट इट? सो ये पोस्चर, यानी अभी अगर मैं बैठ के सीधे पढ़ा पा रही हूँ, चल पा रही हूँ सीधे, ये सब हो पा रहा है क्योंकि मेरे जो हर एक मांसपेशी जो खास करके स्केलेटल मसल्स हैं, वो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसके ऑपोजिट में सीधा रह पा रहा है, नहीं तो धड़ाम करके आई विल फॉल डाउन। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग, कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। Next, skeletal muscle is composed of elongated cells, or they are also called muscle fiber. Okay? muscle Now they are arranged in bundles called
Fasciculi. Fasciculi. You remember Fasciculi. this diagram? We had seen ma'am. this diagram. This was the initial diagram we had seen. तो ये मसल फाइबर है ना, और ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके एक गुच्छा बना, अरेंज्ड इन अ बंडल। जैसे हम कहते हैं लकड़ियों को हम एक साथ बांध देते हैं, बोलते हैं बंडल ऑफ स्टिक। तो ये बंडल ऑफ ऐसे फाइबर्स, मसल फाइबर्स, bundle of muscle fibers, and see what it is from. Fasciculi. One fasciculi. और साथ में ये देखो ऐसे बहुत सारे हैं, 1 2 3 ऐसे सारे ग्रुप जो हैं एक साथ में बहुत सारे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द striated muscle, और पॉइंट्स देखेंगे हम। This also we had seen. Each fiber is surrounded by a loose areolar connective tissue sheath called endomysium, ठीक है। आप इस पर वापस जाओ, इस डायग्राम पे, ये एक एक फाइबर की बात कर रहे हैं अभी। Got it? अगर आप यहाँ पर भी देखो, एक एक फाइबर जो है मसल फाइबर, उसके चारों तरफ अराउंड देम व्हाट इज देयर? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एंडोमेसियम, ठीक है। यस, Yes, ma'am. Yes, Yes, you ma'am. keep responding because I will not come to know if the connection has gone off. ठीक है, तो that is one thing. एंडोमेसियम हमने देखा, यहाँ पर भी बहुत क्लियर दिख रहा है, यानी ये एक फाइबर है ना, ये एक फाइबर है और उसके चारों तरफ देखो, ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू शीथ, इट इज कॉल्ड Endomysium. हाँ, लिखा भी है ना यहाँ पे वेरी क्लियरली दैट एंडोमेसियम क्या है? इट इज अराउंड इंडिविजुअल मसल फाइबर, है ना। तो ये एक है, ये एक है, ये एक है, ऐसे सारे अलग अलग इंडिविजुअल मसल फाइबर हैं। इनके चारों ओर जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेसियम, ठीक है। नेक्स्ट, ईच fasciculus is covered by a stronger connective tissue sheath that is called पेरिमीजियम। अब मुझे बताओ fasciculus कहाँ पे है? पहले fasciculus बताना है और कुछ नहीं बताना है। क्या ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा fasciculus है? ये यहाँ से यहाँ पूरा? नो मैम। ओके, तो क्या ये fasciculus है? ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट मीन्स ये जो बंडल बनाए रखे हुए ना, एक एक फाइबर को मिलाकर जो बनता है, जो आपने पहले डायग्राम में देखा था यहाँ पे, है ना, यू हैड सीन इन दिस डायग्राम। ये डायग्राम में ये एक फाइबर है। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ, ये एक फाइबर के चारों तरफ जो लूज एरियोलर टिश्यू है, व्हाट इज इट कॉल्ड? Endomysium. Yes, ma'am. व्हाट इज इट कॉल्ड? Endomysium. Endomysium. है ना, ओके। एंड सारे जो ऐसे 1 2 3 4 5 6, पीछे भी एक होगा, 7 8, ऐसे जो सारे फैसिकुलाई बने हुए हैं,
मसल फाइबर के गुच्छों से जो fasciculi बने हुए हैं, उनके totally outer part there is a covering. Perimysium. That is called perimysium, right? That is called perimysium. Okay, that is also over. Next is the whole muscle is enveloped by tough connective tissue sheath, that is Epimysium. एपिमीजियम. ठीक है, तो ऐसे जो आप एक जिस दो तीन ऐसे सारे जो मिलकर जो फैसिकुलाई है उनके ऊपर से एक लेयर है which is called epimysium. Again we'll see in this diagram. See, you can see this. Yes, ma'am. ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सबसे आउटर में जो ये कवरिंग आपको दिख रही है, टफ कवरिंग that is there is called Epimysium. ठीक है. तो ये हो गया, हमने इसके बारे में देख लिया what is surrounding what. Now a little tougher things have come, right? Okay. बेसिक यूनिट्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, राइट? ये मिलकर एक बंडल बनता है, हम कहते हैं फैसिकुलाई, राइट? अब इसके अंदर की जो पार्ट्स हैं उसको हम जरा देखते हैं. What is it? Muscle fibers are elongated cells, right? Muscle fibers are elongated cells ranging between 10 and 100 microns in diameter. 10 and 100 microns in diameter. Length varies according to size and shape of the muscle. Okay, तो ये जो एक एक फाइबर आप देख रहे हो, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये लंबे सेल्स होते हैं, elongated सेल्स होते हैं, ठीक है, राउंड सेल नहीं है, ये लंबे सेल्स हैं. इनकी डायमीटर कितनी है? ये जो डायमीटर है यहाँ पर वो 10 and 100 माइक्रोन्स के बीच में है. और लंबाई जो है, द लेंथ ऑफ इट will be according to the size and shape of the muscle. ठीक है, it will be according to size and shape of the muscle. Now each fiber is surrounded by a cell membrane called sarcolemma. Sarcolemma. हाँ, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि each fiber is surrounded by cell membrane called sarcolemma and just below lie many flattened nuclei. ठीक है, and what is the cytoplasm of it called? Cytoplasm is called sarcoplasm. ठीक है, and sarcoplasm is rich in Mitochondria and myofibrils. हाँ, mitochondria and myofibrils. ठीक है, तो बेसिक यूनिट के बारे में समझ लिया कि these are elongated cells. We will not say they are spherical cells, or these are elongated cells, है ना. डायमीटर कितनी? 10 से 100 माइक्रोन्स के बीच में. Length varies according to the size and shape of the muscle. Actually. Then next thing we saw that each fiber is surrounded by a Cell membrane is called sarcolemma. And we remember the textbook diagram also, we will see that also so that you can correlate. तो sarcolemma देख लिया, फिर just below lie many flattened nuclei. आप देखो यहाँ पर आपको
न्यूक्लियाई भी दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज ऑल्सो सीन, इधर भी दिखाई दे रहा है। और अंदर क्या है, एक एक फाइबर के चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड Sarcoplasm. sarcoplasm and it is rich in mitochondria and Myophytes. myofibers. Okay, I remember showing that diagram. So this basic structure is what we had seen in the starting initial part of it, है ना। सार्कोलेमा कहाँ पे, आपके टेक्स्ट बुक डायग्राम में भी क्लियर वही दिख रहा है, वही डायग्राम मैंने लिया था इसमें भी। हाँ, सार्कोप्लाज्म भी दिख रहा है इन विच देयर आर मायोफाइब्रल्स। ठीक है, तो ये आपको इसमें सार्कोप्लाज्म है, एक एक जो ये है एरियाज हैं उसमें, और उसके बाहर की तरफ जो है मसल फाइबर के बाहर की तरफ में क्या है, सार्कोलेमा। ठीक है, you can refer the textbook diagram also. I am referring to which diagram? Structure of skeletal muscle, in which first A is shown as muscle bundle and B is shown as muscle fiber. Got it? डायग्राम मिला? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल जहां पर है ना, वहीं पर है ये डायग्राम। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स इनटू skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल जानने के लिए। अब एक मायोफाइब्रल, एक बस एक को डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक रेशे को निकाला है और उसको देखने जा रहे हैं कि इस पे ये स्ट्राइएशंस और ये सब क्या है करके। ठीक है, सो लेट अस सी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफाइब्रल। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो, each myofibril consists of two alternating bands. What are the two bands? Light band or dark band. And dark band. हाँ, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, made up of two alternating bands. One is light and one is dark. Light band is also called I band. हाँ, I and band. how to remember is light में I आएगा तो confusion नहीं चाहिए। ठीक है, clear? Light band will be I band, dark band is A band. A band. A band. ठीक है। Now the light band or I band, it is called I band because it is isotropic to polarized light. ठीक है, अब ये जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं, उस फाइबर में जो प्रॉपर्टीज पाया गया है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि when polarized light is passed through the muscle fiber, at this area the light rays are refracted. ठीक है, it is refracted at the same angle. So we say it is isotropic. It is isotropic to polarized light. I band is divided into two portions. I band is divided into two portions by a narrow dark line. What is it? It's called the Z line.
हाँ, it's called the Z line or sometimes it is called Z disc. तो ये आपका I band है. I band is divided into two portion by Z line or Z disc. The Z line is composed of protein disc which does not permit the passage of light. ठीक है, तो ये जो Z लाइन है इसी के अंदर प्रोटीन है जो लाइट की किरणों को उसमें से पास होने नहीं देता है. ठीक है, डज नॉट परमिट पैसेज ऑफ लाइट. और अगर कोई चीज उसमें से परमिट नहीं कर रहा है तो फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, उस वहीं से जाते जाते लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है. और क्योंकि वो सेम एंगल पे होता है, अगर 45 डिग्री पे लाइट फॉल हो रही है उस पे 45 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होगा, देन वी से आइसोट्रोपिक रिफ्रैक्शन हुआ है. तो हम उसे कहते हैं कि ये आइसोट्रोपिक है. ठीक है, Z लाइन इज कंपोज्ड, ये हमने देख लिया. द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इन बिटवीन टू Z लाइन. ठीक है, ये Z लाइन से लेकर अगला Z लाइन, दो Z जो लाइंस हैं उसके बीच में डार्क बैंड आएगा क्या? सोच के बताना. किसी भी दो Z लाइंस के बीच में डार्क बैंड आएगा? Yes, ma'am. Only one answer. Yes, ma'am. That too Yes, I ma'am. don't answer now. You know, we have studied starting only that alternatively light and dark it is there. So first we have understood कि light के अंदर का जो Z band है उसमें उससे लेकर अगले Z band तक के एरिया को हम सार्कोमियर कहते हैं. तो उसके बीच में एक डार्क जो बैंड है वो भी आता है. आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो, ये Z बैंड है, ये Z बैंड है, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है we call it sarcomere, and in between you can see the dark band also has come. Now what is dark band or A band? A band. The dark band is called A band because it is anisotropic to polarized light. What does it mean? When polarized light is passed through the muscle fiber at this area, the light rays are refracted at different directions. सेम एंगल पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ये एनाइसोट्रॉपिक है, इसलिए ए उसका नाम पड़ा ए बैंड. इन द मिडल ऑफ ए बैंड, अब यहाँ ये आपका ए बैंड है, ए बैंड के बीच में एक जोन है उसे हम कहते हैं एच जोन. H zone. ठीक है, इन द मिडल ऑफ एच जोन लाइज the middle part of myosin filament. ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आपका H जोन है, ये पूरा जो ब्रैकेट में दिखाया है. और फिर ये जो ब्लू आपको लाइन दिखाई दे रही है दैट इज Myosin filament. हाँ, मायोसिन फिलामेंट, और उसका नाम है M M line. ठीक है, कुछ बुक्स में M बैंड भी दिखेगा. तो दिस M line is formed by myosin binding proteins. ठीक है, ये इस चीज का बना हुआ है myosin binding proteins. ओके, बिफोर वी गो फर्दर हम एक बार A बैंड I बैंड से बात कर लेते हैं. पहले हमने बात की थी इसकी, ठीक है, इस बैंड की बात की थी हमने. हाँ,
तो हम अगर इसकी बात कर रहे हैं इस एरिया की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरे एरिया की हम अगर बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर बताना है, ये कौन सी बैंड है? मैम लाइट बैंड Light band. and also Light called band. I band. Okay. Light band is also called I band, and you I know band. why that I word came? Not because LIGHT, वो याद रखने के लिए बताया है। एक्चुअल में रीजन क्या है? वो आइसोट्रोपिक है, Isotropic. ठीक है। दैट मीन्स मसल फाइबर्स के थ्रू जब लाइट पास किया जाता है, पोलराइज लाइट पास किया जाता है, इस इलाके में जितने लाइट पड़ती है वो उसी एंगल पर रिफ्रैक्ट कर जाती है, तो दैट शोज इट इज आइसोट्रोपिक, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर इन बिटवीन? ये क्या है ब्लैक जो दिख रहा है? व्हाट इज इट? J band. हाँ, Z Z band. Yes, I'm sorry. Z band. Z बैंड, फाइन। और फिर हमने देखा एक Z बैंड से लेकर यहाँ से लेकर अगर मैं चलती जाऊं यहाँ तक, व्हाट इज इट कॉल्ड? Sarcomere. यस, इट्स कॉल्ड सार्कोमेर। Sarcomere. ओके, गुड। फिर हमने इस स्लाइड में देखा डार्क बैंड के बारे में, अभी डिस्कस कर लिया हमने कि डार्क बैंड इज आल्सो कॉल्ड ए बैंड। ए बैंड नाम पड़ा है क्योंकि एन आइसोट्रोपिक है। इनके थ्रू जब लाइट पास किया जाता है, इनके थ्रू जब पोलराइज्ड लाइट पास किया जाता है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट हो जाता है, सो हम उसे एनाइसोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में, अब इनके जो बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड H H zone. zone. H zone. ठीक है, इट्स कॉल्ड एच जोन। और उसके बीच में, एच जोन के बीच में एक मायोसिन फिलामेंट है, देयर इज अ मायोसिन Myosin filament. फिलामेंट, इट्स कॉल्ड एम लाइन, M line. ठीक है। तो यहाँ तक हो गई ये बात, ठीक है। नाउ ये हम और भी डिटेल उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल दैट लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज नोन एज सार्कोमियर, वो हमने देख लिया। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर, ठीक है। So that is the structural unit of muscle fiber. देखो अब ये क्या है? The portion of myofibril that lies between two successive Z line is known as sarcomere ना, आपने ऑलरेडी देख लिया है। ये Z line से लेकर ये Z line के जो बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? Sarcomere. Sarcomere, ठीक है। Now when muscle contracts, Z line moves close together, due to which the length of each sarcomere decreases, ठीक है। यानी जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये Z बैंड यहाँ और ये Z बैंड यहाँ, ये इधर को मूव होगा और ये इधर को मूव होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, राइट? कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंथ क्या होगा? सार्कोमियर का लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? Decrease होगी. हम Decrease. decrease हो जाएगा. Decrease. है ना। तो when muscles contract, Z lines move close to each other
due to which length of each sarcomere what happens? Decreases. Okay, it decreases. So here you can see again, यहाँ पर ये रिलैक्स स्टेज है, यहाँ पर भी था, ये रिलैक्स्ड स्टेज है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, ठीक है। और ये फिलामेंट्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, ये है मायोसिन, ये है एक्टिन फिलामेंट्स, ओके। सो दिस इज वन थिंग। नाउ सी व्हेन ये Z बैंड है, राइट, ये Z बैंड है यहाँ पर और ये Z बैंड है, ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप टोटल मसल की अब लेंथ देखो इसके कंपैरिजन में, राइट, जो लेंथ है ये कम हो गया है, ओके, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर। Here also same you can see. Okay. Now, what are the contractile elements of muscle? That also we need to understand. Myofibrils are the contractile unit of muscle fibers. Okay. Each of them is made up of thick and thin myofilaments. Thick myofilaments are called myosin filament. myosin है ना। ये जो आप देख रहे हो रेड थिक वंस, जहां पे भी आप रेड थिक वंस देख रहे हो, दे आर myosin filaments, ठीक है। They are situated in the A band and they are composed of protein called myosin. What about actin then? Thin filaments are called actin filaments. ये वाले है ना। अब मैंने हाईलाइट किया इसलिए मोटा दिख रहा है, अदरवाइज दीज आर थिन ना। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे जो हैं ये थिन है। Thin filaments are called actin filaments that extend from either side of the Z lines. They run across I band, enter into A band up to H zone. ठीक है। So ये कैसे हैं देखो, that extend from either side of the Z lines. ये Z लाइन्स है यहाँ, तो इसमें कहा गया है दोनों Z लाइन्स से ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम ईदर साइड, दोनों साइड से, ठीक है। ये एक्सटेंड्स होते हैं और दे रन अक्रॉस I band and enter into A band up to where? H zone. यहाँ तक है, यहाँ तक। Now, they are composed of complex proteins called actin, formed by 3 types of protein called actin, tropomyosin and troponin. ठीक है। Actin molecules are arranged in the form of double-stranded alpha helical polymer chain which forms the backbone of this thin filament. तो ये आपके actin हैं और tropomyosin molecules form long filamentous structure located in the groove between the 2 chains of actin. ठीक है। Filamentous structure located in the groove between 2 chains of
एक्टिन। तो ये है एक ऐसे ऐसे जो एक्टिन के चेन्स हैं, उनके बीच में से कौन जा रहा है? ट्रोपोमायोसिन। गुड, है ना। जैसे हम वो मोतियों का माला बना के उसको अगर घुमाते हैं तो थिंक दैट 2 लेयर्स लाइक दिस ऑफ जो हम बोलते हैं ना माला है, 2 तो क्या है वो एक्टिन के, उसके बीच में से एक और आपने अगर लगा के घुमाया है वो ट्रोपो, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ब्राउन शेडेड है, राइट। और ट्रोपोनिन ये आपको यहाँ जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। I think we'll stop here contractile elements, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में रिवाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ से रिवाइज करेंगे, ओके। Yes, ma'am.